انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان آج ہوگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام امتحانات میں 1,60,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ پنجاب بھر میں تعلیمی بورڈ بیک وقت امتحانات کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ لاہور تعلیمی بورڈ آج صبح 10 بجے امتحانی نتائج ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا۔ آج لاہور تعلیمی بورڈ آفس میں پریس کانفرنس ہوگی۔ پوزیشن ہولڈر کے اعزاز میں تقریب ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ صبح سویرے ہی موسم برہم، موسم آج بھی گرم، شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور 6 نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 156 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور میں موسم کی تو گزشتہ کئی دنوں سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے ہی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے، لیکن بارش جو ہے وہ نہیں برستی۔ آج بھی امکانات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ صبح سویرے سے ہی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آسمان پر ہلکے بادل بھی موجود ہیں، لیکن ان کے برسنے کے جو ہے وہ کوئی امکان ظاہر نہیں کیے جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ہونے کے باعث حبس کی جو کیفیت ہے وہ بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آسمان پر بادل موجود ہوتے ہیں، اگر سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ بھی کم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث حبس کی جو شدت ہے وہ محسوس کی جا رہی ہوتی ہے۔ لاہوریوں کا یہی کہنا ہے کہ صبح سے ہی جو ہے وہ حبس کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سانس لینا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور شہر لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی یہی دیکھا جائے گا کہ سارا دن دھوپ اور چھاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور آج فضائی آلودگی کی فہرست میں 6 نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 156 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر لاہور میں آج سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ سامیہ۔ لاہور میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزموں سے 8 کروڑ سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی۔ کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے گرفت میں آ گئے۔ ایف آئی اے لاہور نے 3 ملزمان شفقت، ذیشان اور سلمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد سے 6 کروڑ 81 لاکھ کی ملکی اور 1.5 کروڑ سے زائد کی غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ملزمان کے قبضے سے 4,655 امریکن ڈالر، 16,015 یورو، 17,740 درہم پکڑے گئے۔ سعودی ریال، کینیڈین ڈالر اور ترکش لیرا پاؤنڈ بھی برآمد ہوئے۔ ملزم اومیگا منی ایکسچینج کے نام سے کاروبار کرتے تھے۔ لائسنس منسوخ ہونے کے بعد پرائیویٹ طور پر کاروبار کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سرفراز درک نے بتایا کہ اب تک حوالہ ہنڈی کے 41 مقدمات میں سے 84 افراد کو گرفتار کر کے 560 ملین کی ریکوری کی گئی۔ جو لوگ پاکستانی خاص طور پر اور اس حوالہ ہنڈی کے کام میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی ان کے خلاف ریڈ نوٹس کے ذریعے ان کو واپس لائیں گے۔ ابھی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم حوالہ ہنڈی کا کوئی بندہ جو اس میں ملوث ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہم نے 84 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، 41 مقدمات درج کیے ہیں اور 560 ملین 56 کروڑ روپے کی کرنسی جو ہم نے برآمد کی ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کا مزید کہنا تھا کہ بیرون ملک بیٹھ کر کرنسی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزمان کو ریڈ کر کے وارنٹ کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ کچھ بات کریں ڈالر کے حوالے سے تو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ رکنے پر روپیہ سنبھلنے لگا ہے۔ ڈالر کا اوپن مارکیٹ ریٹ دوسرے روز بھی انٹر بینک 300 روپے سے نیچے رہا۔ مزید تفصیلات کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 300 روپے سے بھی کم ہو گیا۔ بینکاری اوقات کے دوران ڈالر 1 روپے 28 پیسے سستا ہوا۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 299 روپے 88 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 2 روپے کم ہو کر 286 روپے پر آ گیا۔
महंगाई का राज बरकरार, शहरियों की दुकानदारों से तकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों और एक फल के भाव मजीद बढ़ गए। अदरक 1200, लहसुन 580, टमाटर 140 और प्याज 120 रुपए किलो तक फरोख्त। करेले और टिंडे 220, शिमला मिर्च 260, शलजम 190, अरवी 180, भिंडी 160 रुपए किलो में दस्तयाब। अनार बदाना 1000, अंगूर 480, सेब और आम 350, नाशपाती 250 रुपए किलो तक फरोख्त। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए, जो कि रोजाना की बुनियाद पर ही जारी किए जाते हैं, तो आज जो सब्जियों का जो सरकारी रेट जारी की गई है, उसमें 11 सब्जियां जो है आज महंगी की गई है। इजाफे के बावजूद इन सब्जियों की फरोख्त जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक नहीं हो रही। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें सब्जी 10 रुपए महंगी करके 130 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। देसी कीमे जो है 10 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 3 रुपए इजाफे के बाद 78 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आलू 100 से 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 5 रुपए महंगा करके 130 रुपए, लेकिन फरोख्त 160 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। बंद गोभी 10 रुपए महंगी करके 130 रुपए आज सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर की गई है। मार्केट में 170 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 15 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फूल गोभी की फरोख्त जो है वो भी 170 से 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शलजम 10 रुपए महंगे करके 130 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 190 से 200 रुपए फी किलो तक शलजम की फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी करके 200 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शिमला मिर्च की फरोख्त 260 से 280 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरवी 5 रुपए महंगी करके 140 रुपए मुकर्रर की गई है, और इसी तरह गाजर चाइना जो है वो 10 रुपए महंगी करके 110 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 110 के बरक्स 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 190 रुपए मुकर्रर किया जी, गया। तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफ के लिए अशियाई ज़रूरिया के नर्ख मार्केट के बराबर कर दिए गए। सिर्फ बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को सब्सिडाइज अशिया महदूद मिकदार में मिल रही हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स सिर्फ बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम वाले सारिफ के स्टोर बन गए। आम शहरियों के लिए सब्सिडी तकरीबन खत्म हो गई। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन को सस्ती अशिया मिल रही हैं। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी फायदा मंद न रही। आम सारिफ के लिए आटा 10 किलो रेट 1420 रुपए है। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए आटे का थैला 448 रुपए है। बेनज़ीर प्रोग्राम के सारिफ को भी महदूद मिकदार में आटा दिया जा रहा है। आम सारिफ के लिए घी का निर्ख 423 रुपए फी किलो, जबकि बेनज़ीर प्रोग्राम सारिफ के लिए 353 रुपए फी किलो है। आम सारिफ के लिए चीनी का निर्ख 146 रुपए फी किलो और बेनज़ीर प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी 100 रुपए फी किलो है। शहरी कहते हैं जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं, उनके लिए अब कोई फायदा नहीं। ताहम बेनज़ीर प्रोग्राम वाले मुतमईन हैं। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। अभी मैं आटा लेने आया हूँ, चीनी लेने आया हूँ, घी लेने आया हूँ, मुझे नहीं मिला। बोलते हैं आपका यानी आपको सब्सिडी नहीं मिली, आपका बेनज़ीर प्रोग्राम है, आपका शामिल नहीं है। प्राइसें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, मगर कम प्राइस में नहीं मिल रहा कुछ। यूटिलिटी स्टोर्स पर नई पॉलिसी के बाद आम शहरियों की आमद इंतहाई कम हो गई है, जिससे अशिया जरूरिया की सप्लाई कदरे बेहतर देखी जा रही है, लेकिन सफेद पोश तबका पिस रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीनी के नर्ख इंतहाई सतह पर पहुंचे तो हुकूमती इदारे हरकत में आए। मार्केट में चीनी की कीमत में कमी आने लगी। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 16 रुपए तक कमी वाक़या हुई। चीनी मजीद सस्ती होने का इम्कान भी मौजूद है। चीनी की कीमत में कमी का रुझान बरकरार। एक हफ्ते के दौरान शुगर मिल्स से चीनी रेट 16 रुपए फी किलो तक कम हो गया। पंजाब की शुगर मिल्स में चीनी का फी 100 किलोग्राम रेट 15,400 से 16,200 रुपए तक हो गया। चंद रोज कबल शुगर मिल्स रेट 18,000 रुपए फी 100 किलो था। सिंध की शुगर मिल्स का रेट 15,200 से 15,400 रुपए फी 100 किलोग्राम है। परचून मार्केट में चीनी 175 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही। एक हफ्ता कबल परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुई। आवाम कहते हैं अगर हुकूमत पहले ही सूरत हाल पर नजर रखती तो चीनी की कीमत में गैर मामूली तेजी नहीं आती। हुकूमत तो अब भी सही क्या कर रही है, 20 रुपये कम करके क्या किया उसने? बाकी चीज़ों को भी तो लेना, आपसे चीनी को नहीं लेंगे। चीनी स्मगल हो रही है, देखो ध्यान नहीं दे रहे। अब ध्यान देने का क्या फ़ायदा, गरीब हम तो पीस रही है ना,
जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। हुक्काम की जानिब से चीनी स्मगलिंग और स्टॉकिस्ट के खिलाफ कार्रवाई से मार्केट में दबाव कम हुआ और चीनी के निर्ख में मजीद कमी का इम्कान भी मौजूद है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म है। गरीब का ईंधन एलपीजी पहुंच से बाहर हो गया है। शहर में कहीं भी एलपीजी ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं, शहरी परेशान है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा में भी एलपीजी की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। एलपीजी माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। शहर में कहीं भी एलपीजी ओगरा के निर्ख पर दस्तयाब नहीं। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपये 38 पैसे मुकर्रर की गई। शहर में एलपीजी 270 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। कीमतों में मनचाहे इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। रिक्शा चलाकर 20,000 बिजली का बिल अदा करें, एलपीजी खरीदें या बच्चों के लिए रोटी, समझ नहीं आती। एक रिक्शे में एक बंदे का जो बिल है घर का वो 15-20 हज़ार आ जाए बगैर एसी के, तो वो क्या करेगा, खाएगा क्या, तो बच्चों की फीसें क्या देगा, क्या कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो एलपीजी दे 250 रुपए विकती भी थी, कोई 280 दे रहा है, कोई 290 दे रहा है। शहरियों का कहना था कि घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। वज़ीर आला ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और काम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अकबर चौक फ्लाईओवर साइट का दौरा, तामीराती सरगर्मियों और सड़कों का मुआयना किया। मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की तकमील पर ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। ट्रैफिक रमा दमा रखने के लिए मजीद बेहतर अंदाज में काम किया जाएगा। ट्रकों के लिए तो यू टर्न बन गए, लेकिन जो साइड पे जगह उसके लिए अभी हम अंदर बैठ के ये मीटिंग कर रहे थे, तो सीटीओ भी और कमिश्नर साइड से भी दोनों इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या रीएडजस्टमेंट होने वाली है, तो उसको फिक्स कर देंगे। साइन बोर्ड लगाएंगे, अभी अगले 2-4 हफ्ते के अंदर सारे साइन बोर्ड लग जाएंगे, मार्किंग हो जाएगी और थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं ना खराबी, उसको हम ठीक भी कर लेंगे। वज़ीर आला ने कहा, हमने कई मंसूबे शुरू किए हैं। जनूबी पंजाब का उर्दवान अस्पताल लाहौर के किसी भी बड़े अस्पताल से अच्छा है। वहाँ जाने पर बहुत अच्छी तजावीज़ मिली। कोशिश है कि इन पर ज्यादा काम किया जाए। तैयब उर्दगान हॉस्पिटल था, वो लाहौर के तकरीबन PGLI स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल था। हमारा कोई लाहौर का हॉस्पिटल उसके मुकाबले का नहीं था और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। वो 6-7 साल से चल रहा है और वहाँ पे डॉक्टर्स क्या सारा कुछ मौजूद है और उस बैकवर्ड इलाके में वो हॉस्पिटल होना बहुत बड़ी नेमत है। तो अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़ें आपके सामने थी जो आप लोगों ने खुद भी देखी। फौरी तौर पर जो हम एक्शन ले सकते थे वो लिया हमने। सबसे अच्छा और जो फ़ायदेमंद चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोफेसर हजरात थे और जो पूरा ग्रुप था उनका, उनसे मुलाकात हुई, उनसे काफ़ी लंबा सेशन चला, उन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा आमिर मीर, मंसूर कादिर, CCPO लाहौर, बिलाल सदीक उमियाना भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन जुहेब जान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। जनूबी लाहौर 43 साल से सीवरेज और वाटर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। जिनाह अस्पताल से ठोकर न्याज बेग का इलाका फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। 1 अरब 86 करोड़ का मंसूबा मंजूर ना होने के बाइस शुरू ही ना किया जा सका। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी लाहौर के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम, जिना अस्पताल, शादी खुई और जोहर टाउन में निकासी आब का मंसूबा बनाया गया। वासा ने ट्रंक सीवरेज बचाने का मंसूबा मास्टर प्लान में शामिल किया। वासा का सीवरेज का मंसूबा फंड्स की किल्लत के बायस शुरू न हो सका। जिना अस्पताल से ठोकर न्याज बेग और कतार बंद रोड तक ट्रंक सीवरेज बिछाया जाना था। 2 साल कबल केनाल रोड को ठोकर न्याज बेग तक उखाड़ने की मंजूरी दी गई। 3 साल बाद भी मंसूबे की प्री क्वालिफिकेशन का आगाज न हो सका। मंसूबे के तहत नहर के दोनों इतराफ में ट्रंक सीवरेज बिछाई जानी थी। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 86 करोड़ का तखमीना लगाया गया। जोहर टाउन के नाल व्यू, फेडरल कॉलोनी, खोकर चौक का सीवरेज सिस्टम बेहतर होना था। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए जामे प्लान तैयार किया है। कतार बंद रोड डिस्पोजल और ट्रंक सीवरेज भी मास्टर प्लान का हिस्सा है। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर के ज़ेरे तामीर मंसूबों को मुकम्मल करना LDA के लिए दर्द-ए-सर बन गया। रवा माली साल के बजट में मंजूर शुदा फंड्स का इजरा ना हो सका। शहर के 7 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हैं।
LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए 760 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई, जिसमें से 300 मिलियन जारी हुए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के 460 मिलियन रुपए जारी न होने से मंसूबा ताखीर का शिकार। सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दरकार मजीद 3 करोड़ 66 लाख रुपए जारी न हो सके। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 34 करोड़ 16 लाख रुपए जरूरी है। चाइना स्कीम के लिए 4 करोड़ 4 लाख रुपए मजीद दरकार। टाउनशिप कॉम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ 79 लाख रुपए के फंड जरूरी है। केनाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 17 करोड़ 14 लाख रुपए मजीद चाहिए। काहना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 30 करोड़ 3 लाख। शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 19 करोड़ 96 लाख रुपए तजवीज किए गए। LDA इंतजामिया का कहना है कि कुछ फंड जारी हो चुके, मजीद फंड्स के इजरा के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा की है। शहर लाहौर में पासपोर्ट का हसूल चैलेंज बन गया। गार्डन टाउन ऑफिस के बाहर शहरियों का रश। धूप में खड़े मर्दों खवातीन के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। कोई भी सरकारी काम हो, खवारी पक्की है। पासपोर्ट बनवाना है तो फिर भी परेशानी उठाना पड़ती है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों की लंबी कतारें, बैठने की जगह, न पानी मयसर। शहर के 4 पासपोर्ट दफातर में रश के बायस एजेंटों और टाउट माफिया का राज। गार्डन टाउन ऑफिस के बाहर हर कदम पर एजेंट मौजूद। लाइन में न लगने और VIP प्रोटोकॉल के लिए रेट्स मुकर्रर कर दिए। पासपोर्ट ऑफिस के गार्ड्स भी मुबैना तौर पर एजेंटों के सहूलतकार बन गए। चोर दरवाजे से ऑफिस के अंदर दाखिले का 1000 से 1500 तक वसूल किया जा रहा है। शहरी गार्डन टाउन ऑफिस के बाहर धक्के खाने पर मजबूर हैं। साइलिन ने इल्जाम लगाया है कि पैसों के बगैर अंदर जाना नामुमकिन है। घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। पैसे देने वालों का काम जल्दी हो जाता है। जो पीछे से आ रहे हैं 2-2 घंटे पहले, वो अंदर जाके अपना काम करो, और हम जैसे लोग जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो बाहर खड़े हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो अमला बैठा हुआ है उन्होंने इन डीलरों को हायर किया हुआ है, ठीक है, और ये डीलर वहाँ से करप्शन करते हैं, उनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। पैसे के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, जो मर्जी कर। यहाँ पे अगर वो 3000 रुपये फीस है पासपोर्ट की, 1500 रुपया एजेंट अंदर भेजने का ले रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ कलीम का कहना था कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को जल्द दरख्वास्त देंगे। लाइनों से बचने के लिए लोग एजेंटों के हाथों लुटते हैं। मेट्रो बस के बढ़ते हादसात, मेट्रो ट्रैक की हालत जार बड़ी वजह करार। स्टेशंस के जंगले, बैरियर, इलेक्ट्रिकल सामान की टूट फूट और ख़राब लाइट्स का इंकशाफ। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। मेट्रो बस के ट्रैक पर हादसात मामूल बन गए। मेट्रो ट्रैक की हालत जार बस हादसात की बड़ी वजह करार। स्टेशन के जंगले, बैरियर्स, इलेक्ट्रिक सामान की टूट फूट और खराब लाइटों का इंकशाफ। ठेका दे दिया मगर मुरम्मत और बहाली का काम शुरू न हो सका। शाहदरा से गज्जू मता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस में इदारों की नाअहली भी शामिल। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन खराब हैं। ट्रैक और एड ग्रेड पर लगे 39 स्टेशन फैन, 9 LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, 1 ट्रांसफार्मर भी जल चुका। एड ग्रेड की 10 अर्थिंग पिट्स, डेटा कैबिन और 2 एयर कंडीशनर्स भी गैर फाल हैं। मेट्रो स्टेशन की 67 जंक्शन लाइट्स और स्टेशन पर नस्ब 31 पंखे भी बंद हैं। मेट्रो बस की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 86 लाख 41 हजार रुपए का तखमीना लगाया गया, मगर मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रकम खर्च न की। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो ट्रैक की मुरम्मत और बहाली जारी है। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी यूथ वस्ती पंजाब के ज़ेरे एहतमाम हिजाब एक रवैया एक तर्ज अमल के उन्वान से मुशावरती फोरम का इनेकाद किया गया। ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुशावरती फोरम में नई नस्ल को हिजाब की अहमियत के बारे में आगाही फराहम की गई। हिजाब एक रवैया एक तर्ज अमल के उन्वान से मुशावरती फोरम का इनेकाद। जमात इस्लामी यूथ वस्ती पंजाब ने मुशावरती फोरम का एहतमाम जोहर टाउन में किया। ख़वातीन कसीर तादाद में शरीक हुई। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब की सदर रबिया तारिक और जमात इस्लामी यूथ वस्ती पंजाब की सदर ज़रफ़शाह फ़रहीन ने मुशावरती फोरम में खुसूसी शिरकत की। शुरका ने नई नस्ल में हिजाब की अहमियत को उजागर किया। रबिया तारिक ने कहा कि हिजाब इस्लामी तहजीब की एक अहम कड़ी है। मुआशरे में ख़वातीन का हिजाब हुस्न को बरकरार रखता है। ज़रफ़शाह फ़रहीन ने कहा कि इस फोरम के जरिए दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे हिजाब को मसला ना बनाया जाए। मुस्लिम ख़वातीन हिजाब में खुद को महफूज महसूस करती हैं। देखिए, हिजाब का निज़ाम इस्लाम में मुक़द्दस रिश्तों का एहतराम भी सिखाता है। एक ताल्लुकात के अंदर जो मुहतात रवैया होना चाहिए वो भी सिखाता है। ख़ानदान को जोड़ के रखना भी सिखाता है। लेकिन सोशल जितने हमारे आपस के राब्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, उनकी हुदूद व क़ुयूद का तयन भी करता है। मुशावरती फोरम में डॉक्टर अनीला, सोबिया तजम्मुल, आयशा अंसारी और सबा साकिब ने भी शिरकत की। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्रायलर और अंडों की सप्लाई बेहतर होने लगी है और कीमतों में कमी आ गई है।
मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 498 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 8 रुपये फ़ी किलो तक कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 320, परचून रेट 332 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया। फार्मी अंडे 18 रुपये फ़ी दर्जन सस्ते हो गए। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 303 से कम होकर 285 रुपये पर आ गई। फार्मी अंडों की पेटी 8,430 रुपये की फ़रोख्त होने लगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी आगाह कीजिए। आज जो पोल्ट्री मशरूआत के सरकारी महकमा में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी कमी देखने को मिल रही है, जबकि अंडों की कीमतें जो है वो भी कम की गई हैं। ब्रायलर की खपत कम होने की वजह से आज डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। 12 रुपये फी किलो तक ब्रायलर गोश्त सस्ता हुआ है। 510 रुपये फी किलो से कमी करके 498 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 8 रुपये फी किलो तक कमी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर इस वक्त मार्केट में 320, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 332 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर के साथ अंडों की कीमतों में भी आज जो है वो कमी देखने को मिल रहा है। 18 रुपये फी दर्जन तक ब्रायलर जो अंडे जो हैं वो सस्ते किए गए। 303 रुपये से कीमत कम करके 285 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी मार्केट में 8,430 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि मार्केट में से अंडा जो है वो शहरियों को 25 तक, जबकि फी दर्जन कीमत जो है 290 रुपये तक वसूल की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर और अंडों की कीमतों में मजीद कमी जो है वो की जाए ताकि एक आम आदमी की क़ुव्वत खरीदने भी आ सके। आवाम के लिए रिलीफ सामने आया है। ब्रायलर और अंडों की सप्लाई बेहतर होने लगी है। तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया। अब कुछ बात करें डेंगू के हवाले से, तो डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। लाहौर में डेंगू के 35 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबा भर में 90 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर के वार न रुक सके। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 35 नए मरीज सामने आए। सूबा भर में मजीद 90 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रवां साल पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2156 हो गई। लाहौर में रवां साल डेंगू के 882 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान के मुताबिक जिला लाहौर के हॉस्पिटल्स में इस वक्त डेंगू के 28 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 58 मरीज दाखिल। डेंगू के 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जिला इंतजामिया भी डेंगू के तदारुक के लिए मुतहर्रिक। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि 24 घंटे के दौरान लाहौर में 1030 मस्बत लार्वा मिलने पर 7349 मुकामात पर डेंगू स्प्रे किया गया। इंडोर चेकिंग के नतीजे में 985 घरों से मस्बत लार्वा मिला। आउटडोर सर्वेलेंस के दौरान 45 मुकामात से मस्बत लार्वा बरामद। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं आवाम की मदद के बगैर इंसदाद डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। स्मोक सीजन से कबल महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल पंजाब इन एक्शन फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। स्मोक सीजन से कबल स्मोक से बचाव के इक़दामात महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का प्री स्मोक एक्शन डायरेक्टर माहौलियात पंजाब नसीमुर रहमान शाह की क़यादत में महमूद बूटी, लखोडेर, रिंग रोड और लाहौर से आलकोट मोटरवे के गिरदोनवाह के सनती यूनिट्स पर छापे मारे गए। मुतादिद यूनिट सरबमोहर भारी जुर्माने और मुकदमात का इंदराज भी किया गया। डायरेक्टर माहौलियात पंजाब नसीमुर रहमान ने बताया कि अब हमारे पास सेलिंग, जुर्माने, पर्चे और यूनिट्स मस्मार करने के इख्तियारात आ चुके हैं। कहा कि किसी सनती यूनिट को एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने नहीं दिया जाएगा। स्मोक रूल्स 2023 आपको पता है नोटिफाई हुए हैं इस साल, और उसमें हम इनको बंद भी कर सकते हैं। इवन कि ये अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम ना लगाएं, जुर्माने कर सकते हैं, डिमॉलिश कर सकते हैं, ये रूल्स में मौजूद है। लेकिन हम किसी भी कारोबार को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये अपनी फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं। स्मॉग ऑपरेशन में डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर यूनुस जाहिद समेत फील्ड अफसरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं, शजरकारी के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत का इक़दाम। हॉर्टिकल्चर से मुतल्लिक तालीम देने के लिए इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला। इंस्टीट्यूट बनाने के लिए PHA को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक PHA बाग़ जना में कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट में अफसरान और तलबा को शजरकारी के बारे में आगाही दी जाएगी। PHA ने नए इदारे की तश्कील के लिए कंसल्टेंट की खदमात मांग ली। कंसल्टेंट 2 माह में इदारे की डिज़ाइन रिपोर्ट जमा करवाएगा। डिज़ाइन रिपोर्ट पर 17,76,000 रुपये का खर्चा होगा।
لاہور میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ مسلم لیگ نواز کے سابق ممبران اور صوبائی اسمبلی کو نواز دیا گیا۔ ترقیاتی کاموں میں 10 ارب 45 کروڑ 50 لاکھ کے فنڈز لگائے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے منظوری کے لیے اسمبلی کو الیکشن کمیشن اور فائنانس کیبنٹ کمیٹی کو بھجوا دی۔ شہر لاہور میں سالانہ ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کے منہ کھل گئے۔ کئی سابق ممبران اسمبلی کے حصے میں اربوں، متعدد کے لیے کروڑوں روپے منظور۔ سڑکوں، گلیوں، سیوریج کی مرمت و بحالی اور تزئین و آرائش کی جائے گی۔ ترقیاتی کاموں میں 10 ارب 45 کروڑ 50 لاکھ کے فنڈز لگائے جائیں گے۔ صوبائی دارالحکومت کی 279 اسکیموں کی تکمیل کی اجازت دے دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے منظوری کے لیے اسمبلی، الیکشن کمیشن اور فائنانس کیبنٹ کمیٹی کو بھجوا دی۔ پی پی 146 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی 33 اسکیموں کی منظوری۔ حمزہ شہباز کو ترقیاتی کاموں کے لیے 70 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ پی پی 169 میں اختر بادشاہ حلقہ مریم نواز کی 10 اسکیموں کے لیے 2 ارب منظور۔ پی پی 144 میں سمیع اللہ چودھری کو 20 کروڑ کی 4 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ پی پی 145 میں غزالی سلیم بٹ کو 10 کروڑ کی 2 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری۔ پی پی 147 میں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی 37 اسکیموں کے لیے 86 کروڑ روپے منظور۔ پی پی 148 میں چودھری شہباز کی 20 کروڑ کی 12 ترقیاتی اسکیمیں منظور۔ پی پی 149 میں میاں مرغوب احمد کی 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 20 کروڑ روپے کی منظوری۔ پی پی 150 میں بلال یاسین کی 29 اسکیموں کے لیے 1 ارب 36 کروڑ 7 لاکھ کی منظوری۔ پی پی 153 میں 24 اسکیموں کے لیے خواجہ عمران نذیر کو 1 ارب 1 کروڑ روپے دینے کی منظوری۔ اسی طرح پی پی 157 میں خواجہ سلمان رفیق کو 20 کروڑ کی 9 ترقیاتی اسکیموں کو منظور کیا گیا۔ پی پی 161 میں ملک فیصل کھوکھر کی 40 اسکیموں کے 20 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ پی پی 165 میں ملک سیف الملوک کھوکھر کی 5 اسکیموں کے 20 کروڑ ملیں گے۔ پی پی 168 میں صرف 3 اسکیموں کے لیے ملک اسد کھوکھر کو 20 کروڑ دینا منظور کیا گیا۔ ترقیاتی کاموں کی منظوری الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ گورنر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ گزرنے والی شاہراہ اداروں کی سر جنگ کی نظر ہو گئی۔ واسا اور ایم سی ایل کے تنازع نے کشمیر روڈ کو مسئلہ کشمیر بنا دیا۔ کئی بار چیک جاری ہوتے ہوئے سڑک کی تعمیر التوا کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ کئی برس گزر گئے، انتہائی اہم شاہراہ کشمیر روڈ تکمیل کی منتظر ہے۔ کشمیر روڈ کی تعمیر اداروں کی سرد جنگ کی نظر ہو گئی۔ سڑک کی تعمیر سے متعلق اداروں کی ناقص کارکردگی کی دستاویز لاہور نیوز سامنے لے آیا۔ جون 2021 سے ستمبر 2023 تک کشمیر روڈ بحالی کی فائل دفاتر میں شٹل کاک بن کر رہ گئی۔ واسا اور ایم سی ایل کے درمیان ڈیڈ لاک کے باعث کشمیر روڈ کی مرمت نہ ہو سکی۔ واسا کی جانب سے 24 جون 2021 کو کشمیر روڈ کی مرمت سے متعلق پہلا لیٹر لکھا گیا۔ جون 2021 میں ہی سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ روپے ایم سی ایل کو جمع کروائے گئے۔ پہلا چیک جاری ہونے کے بعد سڑک کی مرمت سے متعلق 1.5 سال خاموشی رہی۔ سڑک کی بروقت تعمیر اور مرمت نہ ہونے سے لاگت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ جنوری 2023 میں واسا نے ایم سی ایل کو مزید 43 لاکھ روپے جمع کروائے۔ واسا نے 29 مارچ 2023 کو چیف میٹروپولیٹن آفیسر ایم سی ایل کو مراسلہ لکھا، جس میں ایم سی ایل کو کشمیر روڈ کی تعمیر مکمل کرنے کی استدعا کی گئی۔ واسا نے 8 اپریل 2023 کو ایک بار پھر سڑک کی تعمیر کی استدعا کی۔ بار بار مراسلوں کے باوجود کشمیر روڈ کی جانب کسی نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر سابق آئی جی سندھ رانا مقبول احمد انتقال کر گئے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا رانا مقبول کے انتقال پر اظہار تعزیت کا اظہار۔ مزید تفصیلات کے مطابق سینیٹر رانا مقبول احمد کچھ عرصے سے علیل تھے۔ وہ سینٹ کابینہ کمیٹی کے چیئرمین اور پنجاب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے رانا مقبول احمد کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا مسلم لیگ نون ایک اچھے انسان اور بہترین پارلیمنٹیرین سے محروم ہو گئی ہے۔ رانا مقبول احمد کی نماز جنازہ ان کے بیٹے کی بیرون ملک سے آمد پر ادا کی جائے گی۔ لاہور کو خوبصورت اور مسائل سے پاک کرنے کے لیے نئے نام کے ساتھ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ سڑکوں کی مرمت، کوڑے کی صفائی سمیت دیگر امور کے لیے اسمارٹ لاہور ایپ متعارف کروائی جائے گی۔ عوام کو اپنی شکایات بذریعہ ایپ اپلوڈ کرنے کی سہولت بھی دی جائے گی۔
शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए LDA को नया टास्क मिल गया। सुहना लाहौर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, दिलकश लाहौर, ग्रीन लाहौर के बाद अब स्मार्ट लाहौर मंसूबा मुतारिफ। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लाहौर के नाम से नई एप्लीकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। LDA, वासा, टीपा, PHA, MCL और दीगर इदारे इस मंसूबे के तहत काम करेंगे। स्टेक होल्डर समेत आम शहरियों को स्मार्ट लाहौर ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सहूलत दी जाएगी। स्मार्ट लाहौर मंसूबे में सड़कों, फुटपाथों की मरम्मत, वॉक कीज की बेहतरी, पेडिस्टेरियन पुलों का काम किया जाएगा। लाहौर के बासी सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतालिक शिकायत ऐप में अपलोड कर सकेंगे। गैर कानूनी तामीरात, कब्जा, सरकारी अमलाक को नुकसान से मुतालिक शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। पार्कों की हालत जार और सड़कों की अबतर सूरत हाल की तस्वीर भी नई ऐप में अपलोड की जा सकेंगी। स्मार्ट लाहौर ऐप पर आने वाली शिकायत को हल करने के लिए मुतालिका ऑफिसर को 1 से 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों को न्यूट्रल ग्राउंड फराहम करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि इम्तिहानात में तारीख में सदर मुमलिकत नहीं, इलेक्शन कमीशन का किरदार है। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इमरान इस्माइल और दीगर अरकान शरीक हुए। आम इंतखाबात की तैयारियों, पार्टी की तंजीम साजी और निगरान हुकूमत के किरदार पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आम इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में यकसा मौके दे। पंजाब वफाक हम ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हर सियासी जमात का हक है, इलेक्शन से पहले हर जमात को वो दस्तयाब हो। पार्टी के सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी ने कहा कि आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होने वाली हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए। पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का कहना था कि पंजाब में IPP का मुकाबला नून लीग के साथ होगा। इलेक्शन जो है वो हमारी डिलिमिटेशन के मुकम्मल होने के बाद होने चाहिए। इसके अंदर डिलिमिटेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पिछले इलेक्शन में उनके नाम और उसमें वो नहीं शामिल थे। कोई भी जो पिछली जमात, जो पिछली हुकूमत रही, ख़ास तौर पे 5 साल 10 साल, हम उनकी पॉलिसी से शदीद इख्तलाफ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे आवाम के साथ ज़्यादती हुई। पिछले 5 साल में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कोई आवाम के साथ सलूक नहीं हुआ, और जो कसर रह गई थी वो नून लीग की जमात ने तकरीबन 1.5 साल में वो पूरी करके अवाम को एक ऐसे शदीद अजाब में मुब्तला कर दिया है कि जिससे बाहर निकलना अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने सूबे में पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इयादा किया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ में करवाए जाएं। ये हमारी पार्टी का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून प्री पोल धांधली कर रही है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से आवामी राबिता मुहिम का आगाज कर दिया। अब वो पंजाब दाखिल हो रहे हैं। जुमेरात को CEC इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें इंतखाबात के इनेकाद के लिए पीपल्स पार्टी का लाहेअमल पेश करेंगे। जुमेरात को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अहम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो उन्होंने तलब किया है, और उसमें वो अपने आने वाले इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल तरतीब देंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि जब पीपल्स पार्टी 90 रोज में इलेक्शन का कहती है तो एक मखसूस जमात की चीखें निकलती हैं। महंगाई की बात हो तो कहते हैं कि सब ने मिल बैठकर फैसले किए। इसहाक डार को बताना होगा कि डॉलर कैसे बेकाबू रहा। 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाएं। हमारी इस हुकूमत के अंदर काफ़ी महंगाई भी हुई, काफ़ी लोगों का जो है वो मुश्किलात में इजाफा भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका तयन भी होना चाहिए। डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं रहा? इसहाक डार साहब,
آپ کو یہ بتانا ہوگا, آپ کو یہ جواب دینا ہوگا. سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنی جماعت کے نمائندوں کو فنڈز دیتی رہی اور دوسروں کو کہتے رہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے. آپ کی نااہلی کا بوجھ کوئی اتحادی نہیں اٹھائے گا. کیمرامین نعمان اعجاز کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز گزشتہ رات ہنگامی طور پر وطن واپس پہنچ گئے. ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز چند روز قبل دبئی گئے تھے، جہاں سے انہوں نے لندن جانا تھا. نواز شریف کی واپسی کے حتمی اعلان کے بعد حمزہ شہباز کو فوری طور پر لاہور پہنچنے کی ہدایات دی گئیں. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے حسن رضا سے. جی حسن، اپڈیٹ کیجیے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز جو ہے وطن واپس پہنچ گئے ہیں. حمزہ شہباز نجی پرواز DK622 کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف چند روز قبل دبئی گئے تھے، جہاں سے انہوں نے لندن جانا تھا، لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کی حتمی اعلان کے بعد حمزہ شہباز شریف کو فوری طور پر لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی. پروگرام کے مطابق حمزہ شہباز نے دبئی سے لندن نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے عام بیٹھک میں شرکت کرنا تھی، لیکن قیادت نے انہیں دبئی میں ہی رہنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد انہیں واپس لاہور جانے کے احکامات جاری کیے گئے اور وہ آج جو ہے وہ لاہور واپس پہنچ چکے ہیں. جی حسن رضا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ. مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان. 21 ستمبر سے 23 ستمبر تک گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی شریک ہوں گے. امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس. جنرل سیکرٹری ضیاء الدین انصاری سمیت دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. جاوید قصوری نے کہا کہ نگران حکومت عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا رہی ہے. نون لیگ کی قیادت لندن میں عیاشیاں کر رہی ہے. عہدیداروں نے بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. 21 ستمبر سے 23 ستمبر تک گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا. ہم نے یہ طے کیا ہے، جناب سراج الحق صاحب اس کا اعلان کر چکے ہیں، کامیاب ہڑتال کے بعد انشاءاللہ ہم پنجاب میں گورنر ہاؤس کے سامنے 21، 22، 23 ستمبر جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن ہم عوامی احتجاجی دھرنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ دھرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے. جاوید قصوری نے کہا کہ دھرنا پرامن اور جمہوری ہوگا، جس سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے. کیمرامین بابر کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز. جوہر ٹاؤن میں CEO کلب کے زیر اہتمام ایکسیکو سی ٹاک ود 100 CEOs مینجمنٹ ہاؤس کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں گورنر پنجاب علی گو رحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. CEOs کلب کے زیر اہتمام ایکسکلوزیو ٹاک ود 100 CEOs مینجمنٹ ہاؤس کے زیر اہتمام جوہر ٹاؤن میں تقریب کا انعقاد. تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب محمد علی گو رحمان تھے. تقریب میں ملک بھر سے نامور کمپنیوں کے CEOs نے شرکت کی. مختلف CEOs نے خطاب میں ملک کے اندر مایوسی ختم کر کے امید پھیلانے اور ملک کو ترقی دینے کے متعلق بات کی. گورنر پنجاب علی گو رحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا پوٹینشل اس سے کئی گنا آگے تھا. ہم اپنی منزل سے پیچھے ہیں. ہمارے دین میں بھی ہے کہ مایوسی گناہ ہے. ہمارے ملک میں بہت سے قیمتی ہیرے موجود ہیں. پاکستان کا پوٹینشل اس سے کہیں آگے تھا اور آج ہم اپنی منزل سے بہت پیچھے رہ گئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اتنی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں. ہمارے مذہب جو ہمارے لیے ایک ایٹرنل ایک ہمیشہ کے لیے ڈیوائن گائیڈنس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مایوسی گناہ ہے. گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا اور ملک کے بارے میں اچھی تصویر پیش کرنی ہے، تبھی باقی دنیا ہماری قدر کرے گی. ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں اور ترقی کا حصہ بننے میں ہمارا ساتھ دیں. ہر شخص کے اندر جو ضروری ہے، اور لیڈرشپ میں یہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ وطن کی مٹی سے محبت جو ہے وہ اس کا لازمی حصہ ہے، اور یہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے. تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز.